Viewers, good morning to all of you. Okay, today we will start the session of 50 questions, which is always asked in NET or SET examination. So, hi everyone. Now, the today's first question is, who is considered the father of English literature? And the answer is Geoffrey Chaucer. Question number 2, which epic poem tells the story of the Trojan War and its aftermath? And the name of the poetry is The Iliad by Homer. Question number 3, who wrote the first English novel? And the first English novel which is known as Daniel Defoe, and the name of the novel is Robinson Crusoe. पहला जो इंग्लिश नॉवल है वो रॉबिन्सन क्रूसो और उसके राइटर है डैनियल डेफो. ओके, सो what is the Elizabethan age in English literature known as? Elizabethan जो age है वो English literature में क्या कहा जाता है? So the flourishing of poetry and drama during the Queen Elizabeth reign, or the golden age for English literature. Then question number 5, who wrote Paradise Lost? Paradise Lost is written by John Milton. Which literary period is categorized by a focus on reason and intellect? And the answer is the Age of Enlightenment. Who penned the famous play Romeo and Juliet? And Romeo and Juliet is written by William Shakespeare. Which poem by Samuel Taylor Coleridge, S.T. Coleridge, include the lines "Water, water everywhere, nor any drop to drink"? It is a question in the September 2021 SET exam also. So the answer is the Rime of Ancient Mariner. But ये जो सवाल है ये इस तरह से पूछा गया है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, ये जो लाइन्स है पोएम के, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ऐसा क्वेश्चन आया था. ओके, सो ये पोएम लिखी गई है सैमुअल टेलर कोलरिज ने, और ये जो लाइन है वाटर वाटर एवरीवेयर, ये लाइन है द राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर की, और इसका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है आयरनी, बिकॉज देयर इज एवरीवेयर वाटर बट नॉट अ ड्रॉप फॉर ड्रिंक. ओके. Question number 9, who is known for his Gothic novel Frankenstein? So the Gothic novel Frankenstein, and the author is Mary Shelley. Which romantic poet is associated with the phrase nature poetry? Naturally, the nature poetry belongs to William Wordsworth. Then question number 11, who wrote Pride and Prejudice? Pride and Prejudice written by Jane Austen. Which literary movement emerged in the late 19th century focusing on realism and naturalism? कौन सा ऐसा लिटरेरी मोमेंट है लेट 19 में का जो फोकस करता है रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म पे? तो वो है विक्टोरियन इरा. हु इज़ द ऑथर ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन? ग्रेट एक्सपेक्टेशन के ऑथर कौन है? चार्ल्स डिकेंस. विच आयरिश राइटर रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1923? तो W.B. Yeats को 1923 में नोबेल प्राइज मिला था. देन विच इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द T.S. Eliot's पोएम द वेस्टलैंड? T.S. Eliot की जो पोएम है वेस्टलैंड, उसका थीम क्या है, सेंट्रल थीम क्या है? सो द फ्रैगमेंटेड मॉडर्न वर्ल्ड. नाउ हु इज एसोसिएटेड विथ द लॉस्ट जनरेशन ऑफ writer after World War First? Who is associated with the lost generation? And the answer is Ernest Hemingway. Which author is known for his dystopian novel 1984? So the 1984 it is a dystopian novel, और ये नॉवल फेमस नॉवल लिखा है जॉर्ज ऑरवेल ने. देन हु रोड द प्ले वेटिंग फॉर द गोडोट, ऑफन एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ द अब्सर्ड? तो थिएटर ऑफ द अब्सर्ड से जुड़ा हुआ जो वेटिंग फॉर गोडोट है, ये फेमस प्ले लिखा है सैमुअल बेकेट ने. विच नॉवेल बाय हार्पर ली एड्रेस रेशियल इनजस्टिस इन द अमेरिकन साउथ? टू किल अ मॉकिंगबर्ड. इट इज़ अ वेरी फेमस नॉवेल at the point of view of NET and SET exam. Go through the novel, character wise, theme, etc. Okay. Then question number 20, who is often regarded as the leader of the Harlem Renaissance? So the Harlem Renaissance regarded as the leader is Langston Hughes. Which British author wrote the Lord of the Rings trilogy? तो कौन से ब्रिटिश ऑथर ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ये ट्रायोलॉजी लिखी है? J.R.R. Tolkien. Who won the Nobel Prize in Literature for his mastery of historical and biographical description? तो नोबेल प्राइज लिटरेचर में मिला है मास्टरी ऑफ हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के लिए, तो वो है विंस्टन चर्चिल. विच अमेरिकन पोएट इज नोन फॉर रेक्लूसिव लाइफ स्टाइल एंड डिस्टिंक्टिव यूज ऑफ डैशेज इन हर पोएट्री? सो तो वो ऑथर है इमिली डिकिंसन. Which novel by Salman Rushdie explore the history of India through magical realism? सलमान रश्दी ने कौन से अपने नावल में एक्सप्लोर किया है हिस्ट्री ऑफ इंडिया को, और वो दिखाया है मैजिकल रियलिज्म से? तो वो है मिडनाइट चिल्ड्रन. ओके, मिडनाइट्स चिल्ड्रन.
देन हु रोट 100 Years of Solitude, a landmark work in magic realism. सो गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूज, इसमें भी मैजिक रियलिज्म आपको दिखाई देगा. देन विच कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश ऑथर रोट द हैरी पॉटर सीरीज. ऑब्वियसली हैरी पॉटर सीरीज को लिखा है जेके रोलिंग ने. हु इज़ नोन फॉर हिज प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन, अ क्रिटिक ऑफ अमेरिकन ड्रीम. सो डेथ ऑफ सेल्समैन इज बाय Arthur Miller. It is a very famous play, and the name of the character, famous protagonist of the novel is that Willy Loman. Which American author wrote The Catcher in Rye? It is written by J.D. Salinger. Who is the author of Hitchhiker's Guide to the Galaxy? So the Douglas Adams. Which African American poet became a prominent figure in the civil rights movement with words like I know why the cage bird sings? तो माया एंजेलियो अफ्रीकन अमेरिकन पोएट है, एक प्रोमिनेंट फिगर मानी जाती है सिविल राइट्स मूवमेंट में, और उन्होंने लिखा है आई नो वाई द केज बर्ड सिंग्स. हु रोट द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, अ नॉवेल एक्सप्लोरिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटेलिजेंस एंड हेडोनिज्म. तो द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे एक नॉवेल एक्सप्लोर करता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंटेलिजेंस एंड द हेडोनिज्म, और वो लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने. विच नोबेल लॉरिएट रोट द ओल्ड मैन एंड द सी. तो नोबेल प्राइज विनर अर्नेस्ट हेमिंगवे ने लिखा है द ओल्ड मैन एंड द सी, एंड द वेरी फेमस और द इम्पोर्टेंट नॉवेल शांटिगो इज अ कैरेक्टर देयर, एंड दे आर चेजिंग 84 days he is trying to catch the fish. Now, who is known for her dystopian novel The Handmaid's Tale? So the answer is Margaret Atwood. Which Indian author won the Booker Prize for The God of Small Things? And the answer is Arundhati Roy. The God of Small Things, also an important Indian novel, won the Booker Prize. Here there is a famous character Veluta, who is outcast, as well as the Ammu is the heroine of the novel. So read the whole story. Who is often credited with the bringing the sonnet from the perfection in English literature? So the sonnet जो है perfection जिसने लाया है, या किसे क्रेडिट दिया जाता है कि जिसने परफेक्टली सोनेट को किया, तो वो है विलियम शेक्सपियर. विच 20th century अमेरिकन प्ले राइट रोट अ सीक्रेट स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर. तो कौन से 20th century के अमेरिकन प्ले राइट है जिन्होंने स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर लिखा है, तो वो है टेनेसी विलियम. देन who wrote the poem The Road Not Taken, known for its exploration of choices and consequences. और ये लिखा है The Road Not Taken, एक very famous poem by Robert Frost. Which Irish writer and poet wrote The Dubliners and Portrait of the Artist as a Young Man? तो Dubliners और A Portrait of the Artist as a Young Man लिखा है जेम्स जॉयसी ने. Who is known for his satirical novel Gulliver Travels? Gulliver Travels लिखा है जॉनथन स्विफ्ट ने. विच ब्रॉन्टे सिस्टर रोट उदरिंग हाइट्स? तो उदरिंग हाइट्स लिखा है एमिली ब्रॉन्टे ने. उदरिंग हाइट्स एक काइंड ऑफ ए स्टोरी है जिसमें हिथक्लिफ है, कैथी या कैथरीन है. सो द इट इज़ काइंड ऑफ ए हॉन्टेड और द घोस्ट्स अपीयर इन द स्टोरी. देन विच ऑफन रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न इंग्लिश प्ले राइट? क्रिस्टोफर मार्लो इज रिगार्डेड एज फर्स्ट इंग्लिश प्ले राइट, क्रिस्टोफर मार्लो. Then which romantic poet wrote Ode to Nightingale and to Autumn? तो Ode to Nightingale and to Autumn लिखा है जॉन किट्स ने. Who is known for his detective novels featuring Hercules Poirot and Miss Marple? So the famous detective novelist Agatha Christie. Which author explored the impact of British colonialism in India through work like A Passage to India? तो कौन से ब्रिटिश कॉलोनियल ऑथर ने लिखा है पैसेज टू इंडिया? तो पैसेज टू इंडिया लिखा है E.M. फॉस्टर ने. देन हु इज़ द ऑथर ऑफ इपिक फैंटेसी सीरीज अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर अडॉप्टेड इन द टीवी सीरीज गेम्स ऑफ थ्रोन्स? तो कौन सी फैंटेसी सीरीज है सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर जो अडेप्ट हुई है टीवी सीरीज बनाने में, गेम ऑफ थ्रोन्स कह के उसको अडेप्टेशन हुआ है, तो है जॉर्ज R.R. मार्टिन. विच नॉवेल बाय एडॉल्फ हक्सले envisions a dystopian future where individual is suppressed? तो ये एडॉल्फ हक्सली की कौन सी नॉवेल है डिस्टोपियन जो फ्यूचर वेयर इंडिविजुअलिटी सप्रेस हो रही है? तो वो है ब्रेव न्यू वर्ल्ड. हु रोट द कैंटरबरी टेल्स, अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज टोल्ड बाय पिलग्रिम्स ऑन देयर वे टू कैंटरबरी? तो ये लिखी है कैंटरबरी टेल्स फेमस जो है वो जॉफ्रे चॉसन ने लिखी है.
कैंटरबरी टेल्स में देर आर कलेक्शन ऑफ 29 stories, 22 stories and 29 pilgrims, and it is decided that वाइल गोइंग, जब वो जर्नी पे जा रहे हैं तब 2 स्टोरी बताई जाएगी और आते टाइम 2 स्टोरीज बताई जाएगी. तो इसमें प्रो स्टोरीज कौन सी है और फिर इसमें कौन सी स्टोरी किसने बताई, पहली स्टोरी कौन बताता है, लास्ट की स्टोरी किसने बताई है, कौन से 2 स्टोरीज प्रोज फॉर्म में है. तो ये ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे से पूछे जाते हैं. देन विच अमेरिकन पोएट इज़ नोन फॉर हिज फ्री वर्स एंड अनकन्वेंशनल यूज ऑफ पंक्चुएशन एज सीन इन लीव्स ऑफ ग्रास. तो वो है वॉल्ट विटमन. Which is the author of The Color Purple addressing issues of race, gender in Southern United States. तो कौन सी वो ऑथर है जिन्होंने द कलर पर्पल लिखा है जिसमें जेंडर और रेसिज्म पे लिखा है, तो वो है एलिस वॉकर. देन विच इंग्लिश प्ले राइट एंड पोएट रोड द ट्रेजेडी मैकबेथ एंड द कॉमेडी अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. तो करेक्ट आंसर इज विलियम शेक्सपियर. इफ यू like my videos, then share, like, share and subscribe. Thank you.